Hello everyone and welcome to 7 Days 7 Super Stock Series. Today we are going to talk about Jio Financial Services Limited. So let's deep dive into Jio Financial Services Limited right away. And here we go. So screener.in gives us the compressed information about the fundamentals of the company. About the company, Jio Financial Services basically was incorporated in the year 2023. It is incorporated as a NBFC, that is non-banking financial company. ND, which is the company which can't take the deposits, accepts deposit, but is SI, that is systematically important, registered with RBI. So regulated by RBI, systematically important means what? It is a company whose net assets are more than 500 crores. Since the net assets are more than 500 crores, RBI के हिसाब से ऐसी कंपनीज क्रूशियल होती हैं किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर. तो कंप्लीट प्रोविजंस एंड गाइडेंस उनका होता है आरबीआई के थ्रू. नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कंपनी नॉन बैंकिंग है, कंपनी अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकती है डिपॉजिट्स, तो अपने आप को फंड कैसे करती है? एनबीएफसी who are ND and SI, that is systematically important, fund themselves through equity, loans and bonds. Now, before deep diving into the business news of Jio Financial Services, let's try to understand what is the structure of Jio Financial Services. So Jio Financial Services एक होल्डिंग कंपनी है और इसके साथ में काफी सारी सब्सिडरीज काम कर रही हैं. जब हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रोडक्ट एंड सर्विस पोर्टफोलियो को देखते हैं, मतलब डाइवर्सिफिकेशन या उससे उसके बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन जिस तरह से हुआ है उसको समझते हैं, तो हम क्विकली चलते हैं एक छोटे से प्रेजेंटेशन की ओर जो कि बीएससी की साइट पर विजिबल है. जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया के कस्टमर्स की फाइनेंशियल नीड्स को एड्रेस करती है. ये फाइनेंशियल नीड्स हो सकती है लेंडिंग से रिलेटेड हो, लीज से रिलेटेड हो, डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो. सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में जियो फाइनेंस लिमिटेड, जियो लीजिंग सर्विसेज लिमिटेड, जियो पेमेंट सॉल्यूशंस, जियो पेमेंट बैंक्स लिमिटेड, जियो का जॉइंट वेंचर विद ब्लैक रॉक, दैट इज द रीसेंट न्यूज वेयरइन जियो एंटर्ड इनटू joint venture agreement with BlackRock to work as an asset management company, जो कि आपका wealth management का काम भी आगे जाके संभालेगा. साथ में जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड. When जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की जाए तो ये 4 पिलर्स पे ये कंपनी बेसिकली काम करती है एंड दे आर कंप्लीटली फर्स्ट मूवर व्हेन इट कम्स टू डिजिटल इनोवेशंस, एनालिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी. सो ये 3 आयाम इनके डिफरेंशिएटर्स हैं. तो इस तरह से ये कंपनी कस्टमर्स की बेसिक से लेकर वेराइड फाइनेंशियल नीड्स को सर्व करती हैं. अब हम चलते हैं वापस इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की ओर. तो लेंडिंग, लीजिंग, payments and protection by insurance and investment. Now, when we talk about the revenue stream of the company, the revenue is driven by investments. And this could be like equity, bonds and loans. When these are the investment domains, company का income कहाँ से आएगा? Interest से आएगा, dividend से आएगा, कुछ fees और commission से आएगा, and also from the changes in the value of investment, which is called as net gain or loss at times on fair value changes के ऊपर, right? And these are the recent development with the company, that Jio Finance app. We all know investments. When it comes to investments, company is very aggressive when it comes to its investment in capex. And what is the focus of the company? Definitely digital aspects, analytics, and technology. Okay, so let's deep dive into Jio Financial Services. But before that, let's touch upon the news which is around. So the first news which is around is Jio Financial arm Jio Payment Solution receives RBI node to operate as an online payment aggregator. अब अगर Jio Financial Services ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तरीके से काम करेगा तो शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होना ही वाला है, बिकॉज शेयर का प्राइस बढ़ना है. कंपनी को क्या बेनिफिट? कंपनी को फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज कंपनी इस स्पेस में जितनी जल्दी अपने स्टेप इन कर रही है उसको एक बड़ा कस्टमर बेस मिलने वाला है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का. तो एक ही बेनिफिट तो डेफिनेटली हो ही गया. अगर हम दूसरे बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन कंपनी का कॉम्पिटिटिव पोजीशन. सेकंड, अगर हम बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं ऑलमोस्ट 3.13% से इन सितंबर 2024 क्वार्टर, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है. मतलब सेल्स बढ़ी है, नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ा है. थर्ड न्यूज की अगर बात की जाए तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंशियल सर्विस बोथ आर एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर्स टू कंस्ट्रक्ट एन एएमसी. अब
म्यूचुअल फंड बिजनेस में अगर कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है तो ये क्लियर है कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ेंगे, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी, कस्टमर्स के लिए एक और एवेन्यू ओपन हो जाएगा इंक्रीज रिटर्न्स को जनरेट करने का, बिकॉज ब्लैक रॉक इज अ ग्लोबल एएमसी लीडर, राइट। एंड इस तरह से कोलैबोरेशन का काफी बेनिफिट कस्टमर्स को मिलेगा, शेयर होल्डर्स को मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ द शेयर, इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद में जानना जरूरी हो जाता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखने के लिए हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, और हमारे पास में केवल 2 साल के फाइनेंशियल्स है, बिकॉज कंपनी इनकॉर्पोरेट ही जुलाई 2023 में हुई है, तो ये फाइनेंशियल नंबर हमारे पास में काफी लिमिटेड टाइम पीरियड का है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी के अगर सेल्स नंबर को देखा जाए तो 2023 के कंपैरिजन में मार्च 2024 में सेल्स नंबर इज लाइक ब्लास्टेड। 45 करोड़ से वो नंबर हो गया 1855 करोड़। कंपनी के अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखा जाए तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम 39 करोड़ से हो गए हैं 1559। Isn't it like numbers beyond imagination, right? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो बहुत सिंपली कैलकुलेट हुआ है, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 88% से 84% की रेंज में, ऑलमोस्ट वेरी हैवी प्रॉफिट मार्जिन, isn't it fantastic one? अब कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट्स के बारे में बात की जाए तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स 31 करोड़ से 1605 करोड़ तक हुए हैं। कंपनी का ईपीएस जो रिसेंटली कैलकुलेट हुआ है लास्ट ईयर मार्च 2024 के नंबर के लिए कुछ इस तरह है। अब बारी आती कंपनी की सेल्स ग्रोथ को देखने की। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 4036% ट्रेलिंग टिल डेट, राइट। कंपनी के अगर प्रॉफिट्स में ग्रोथ के बारे में बात करें तो ये नंबर्स अपने आप में ही इंडिकेशंस दे रहे हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी स्ट्रांग है। तो सेल्स नंबर, रेवेन्यू, that is sales, that is revenue, profitability, that is super fantastic. And when I say the overall growth in the stock prices, it is around 49%. बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। कंपनी की बैलेंस शीट में हम अगेन टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज को इवेल्युएट करते हैं। टोटल लायबिलिटीज में वी हैव इक्विटी which is the sum total of equity, share capital and reserves. रिजर्व्स को जरा देखें तो ये रिजर्व्स के नंबर 114 करोड़ इन द मार्च 2023 से मार्च 2024 में 132 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। कंपनी के फिक्स एसेट्स को देखें, सिंस इट इज अ फाइनेंशियल सर्विसेज, फिक्स एसेट्स इतने ह्यूज रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, बट व्हेन वी लुक एट द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द कंपनी दे हैव ग्रोन फैंटास्टिकली, एंड दैट्स द रीजन व्हेन वी से कि रेवेन्यू ग्रोथ में कैसे इजाफा हुआ है, यहां से इजाफा हुआ है, बिकॉज कंपनी इज वेरी माइंडफुल व्हेन इट कम्स टू देयर इन्वेस्टमेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी। तो 3 कंपोनेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। इन तीनों कंपोनेंट को इवैल्यूएट करने के बाद में ये बात पक्की हो गई कि ठीक है, इस साल अगर कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अगर नेगेटिव है तो उसका मेन रीजन क्या रहा? कंपनी ने ऑपरेटिंग बोरोइंग्स ली है, मतलब डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बोरोइंग्स ली है, इसलिए कैश फ्लो उनका पेमेंट किया है ऑपरेटिंग बोरोइंग्स का, इसलिए ये नेगेटिव है। मींस यहाँ पर कैश फ्लो हुआ, बेसिकली प्रॉफिट्स तो आया था, मार्च 2024 का जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव आया है, दैट्स कंप्लीटली ओके। बट कंपनी की ऑपरेटिंग बोरिंग्स के कारण 175 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है, कंपनी ने इसको रीपे किया है सिंपली, तो इसलिए ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव दिखता है। अगर हम कंपनी के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो कंपनी इज अगेन वेरी एक्टिव व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। तो कुल मिलाकर कंपनी के पास में एक नेट कैश फ्लो अराउंड 11 करोड़ का है, कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सफिशिएंट है, बिकॉज उसका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट काफी अच्छे से चल रहा है। अब हम बेसिक रेशियोज के बारे में बात करते हैं तो बुक वैल्यू कंपनी की अराउंड 216 रुपीज, मतलब 216 रुपए है, बट मार्केट इज रेडी टू पे अराउंड 320, मतलब कंपनी कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड तो है। कंपनी का मार्केट कैप, अगेन इट्स अ लार्ज कैप कंपनी, एंड कंपनी का स्टॉक पी अराउंड 126 के आसपास है। फ्रेंड्स, हैव अ लुक ऑन द पी ऑफ द इंडस्ट्री, पी ऑफ द कंप्लीट पेयर्स व्हिच आर द कॉम्पिटिटर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पर इंडस्ट्री का मीडियन पीई दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो 24 के आसपास है, वहीं इनका पीई 126, मतलब हाईली ओवर वैल्यूड है। पीई रेशियो का मतलब प्राइस और अर्निंग का रेशियो, मतलब अगर 1 रुपए की अर्निंग करने के लिए आप कितनी प्राइस देने को तैयार हो तो वो आपका पीई बताता है। यूजुअली वी प्रेफर फॉर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी जो इंडस्ट्री पीई के आसपास है या थोड़ा सा ऊपर नीचे है, और यहाँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का पीई काफी हाई साइड पर है। तो ये हो गई कंपनी के
कंप्लीट फंडामेंटल्स के बारे में बातचीत, कंपनी के इन्वेस्टर्स देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 47% है और ये फिक्स्ड है अक्रॉस द लास्ट 2.5 years। सो ये एनालिसिस हुई जियो फाइनेंशियल्स के फंडामेंटल्स को लेकर। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, कंपनी की कैश पोजीशन स्ट्रांग है, कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स काफी स्ट्रांग है और इस तरह से लगता है कि कंपनी इज गोइंग टू ग्रो एग्रेसिवली। Now, with this, let's get into the technical analysis of the company। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम जाएंगे कंपनी के चार्ट्स की ओर। सो ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है और इसका चार्ट कुछ इस तरह से है। अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखें तो इस कंपनी का स्टॉक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक में काफी फाइट चल रही है बायर्स और सेलर्स के बीच में और कोई खास पैटर्न यहाँ मंथली लेवल पे हमें नहीं दिखता। बट हम अगर वीकली लेवल पे इस स्टॉक को एनालिसिस करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि लास्ट वीक में प्राइस ने एक सप्लाई जोन बनाया है, राइट। सप्लाई जोन मतलब क्या कि प्राइस एक ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल की ओर आने की कोशिश में है, राइट। तो रीसेंट 4-5 हफ्तों से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के दाम घटे हैं, स्टॉक के दाम घटे हैं बिकॉज डाउनफॉल आया है रिलायंस का, कहीं ना रिलायंस इंडस्ट्रीज में डाउनफॉल होने के कारण यहां पर भी प्राइस घटी है। तो अगर हमें इस स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी है तो क्या आज का समय सही है, क्या आज के टाइम पे इस स्टॉक में एंट्री लेना ठीक रहेगा, उसकी एनालिसिस हम करते हैं राइट अवे। अब किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हम मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक के अंदर पिछले 4-5 महीनों से 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीनों से लगभग कंसोलिडेशन का माहौल चल रहा है। मतलब स्टॉक अपने 357 वाले लेवल से 317 के आसपास आ गया है। बट अगर हम देखें तो नियरेस्ट कोई भी डिमांड जोन नहीं है। डिमांड जोन मार्क करने के लिए हम करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से और नीचे जाते हैं और देखते हैं कि मंथली पे डिमांड जोन कहां है, मंथली पे डिमांड कहां है इस स्टॉक की। तो इस लेवल पे कहीं पर हमें डिमांड दिखती है इस स्टॉक की, तो हमने ये लेवल मार्क किया, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एंड लोवेस्ट ऑफ द बेस। ठीक है, यहां पर ये दो बेस कैंडल अगर हम पकड़ते हैं तो हम देखते हैं कि 248 से 225 के रेंज में इस स्टॉक के लिए डिमांड है। मतलब आज करंट मार्केट प्राइस पे इस स्टॉक में एंट्री लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशन। वीकली बेसिस पे हम देखें तो लास्ट वीक में करेक्शन आया है, स्टॉक अपने जो प्रीवियस हाई से वहां से डाउन आ रहा है। रिसेंटली हम देखें तो आज इस वीक के अंदर ये स्टॉक की ये कैंडल बनी है। इस स्टॉक को हाई लगाने के लिए यहां तक का लेवल क्रॉस करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस लेवल को ब्रीच करना होगा, मतलब 350 को क्रॉस करना होगा, इसके ऊपर दैट इज 357 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, तब हम सोच सकते हैं कि शायद ये स्टॉक तभी मूव करेगा अपसाइड। तो रोकने के लिए क्या है, रोकने के लिए स्टॉक को 342 का लेवल है, राइट। पर अगर हम बाय करने जाएं वीकली बेसिस पे, कभी काफी लोगों को बहुत मन हो रहा होगा कि मार्केट डाउन है, चलो बाय कर ही लेते हैं रिलायंस, तो उस केस में 275 इज द लेवल विच इज आइडेंटिफाइड वीकली बेसिस पे कि जहां पर थोड़ा बहुत डिमांड के ऑर्डर्स पेंडिंग है। अब वो कैसे पेंडिंग है, हमने यहाँ पे डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया है, लेगिन बेस्ड लेग आउट अवेलेबल है, एक्सप्लोसिव लेग आउट है, तो मतलब 275 के लेवल पे हमें एक डिमांड जोन मिलता है। उसके नीचे अगर देखें तो मंथली का टाइम फ्रेम सपोर्ट लेते हुए ही हमें एंट्री करनी है। ऐसे कोई ग्रेट स्ट्रक्चर हमें यहां आज की तारीख में तो नहीं दिखते। डेली पे हम देखें तो डेली पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इस स्टॉक में मिल रहा है। आज की तारीख में प्राइस 317 के आसपास है। अगर हम डेली में एंट्री करना चाहेंगे स्टॉक के लिए तो 275, जैसे मैंने आपको कहा, ऑलमोस्ट 278 75 के लेवल में एक फर्स्ट एंट्री बैठती है। उसके अलावा हमें अगर मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेके एंट्री करनी है, मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेके ही एंट्री करें। साथ ही हो सकता है जब प्राइस यहां तक आए तो काफी करेक्शन हो जाएगा, ट्रेंड डाउन हो जाएगी, तो हमें रिविजिट करना पड़ेगा इस स्टॉक को कि आज उस स्टॉक में उस दिन के दिन पे क्या चल रहा है। तो पहला लेवल एंट्री का आता है 278 के आसपास, 280 के आसपास कह सकते हैं, और सेकंड लेवल आता है अराउंड 254 के आसपास, या हम कहें 260 के आसपास। तो इस लेवल पर या इन ही लेवल्स पर इस स्टॉक में एंट्री लेने चाहिए। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर।
आई बिलीव आपको ये अंडरस्टैंडिंग काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को लेकर। ऐसे ही अपने फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारे साथ में बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। आप आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी नाम का एक प्लानर भी विजिट कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने एक कंप्लीट गाइडेंस दिया है कि कैसे कोई भी अपना फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर सकता है। यू आर गोइंग टू गेट इन दिस स्मॉल स्टोरीज, you are going to get in this how to define your pathway, your financial goals, how to create the secret recipe of creating wealth around, what is that in the power of compounding, how you can get into expense tracking, monthly expense tracker, budgeting, and importantly what you should have in your kitty if you are looking forward for enriching your wealth. And if you want to manifest the richness around in your life, then this journal is a one-stop solution because it is designed with some spaces wherein you can reflect around your dreams, what you would like to turn into reality. So for any type of financial guidance or with the intent of developing your financial acumen, we would like you to connect with us, as we provide a complete range of services. Like if you are looking forward for job readiness, then skill development. If you're looking for employment readiness, then complete grooming on resume building, online profile creation, interview preparation, and whatnot. We also provide corporate trainings. So if you're looking forward for financial well-being of your employees, please feel free to connect with us. We do provide stock market training, mutual funds, DIY modules, and so on so far. And last but not least, if you're looking forward for diversification, want to invest in real estate, then we provide you investment advisory with regard to real estate. And for all your home loan solutions, we are a complete one-stop solution. If you're looking forward for digital marketing in real estate, again, feel free to connect with us because we have team of experienced and qualified professionals who are working to provide you the best of our services and to satisfy you with the best of what you're looking forward for. So thank you so much for joining in for this conversation for Geo Financial Services complete analysis. And for next talk, stay tuned in for more information. Thank you so much. Take care. Bye.